अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्वेल्थ क्लास के लिए बिजनेस स्टडीज़ से हमने लिया है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये हमारा नवा चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ से, और हमने इसको कल ही स्टार्ट किया है। ये हमारा दूसरा टॉपिक है नवे चैप्टर से, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट प्रोकरिंग फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग वेल्थ ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज़ ऑफ द शेयर होल्डर्स। दूसरा है दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। तीसरा है इसका ऑब्जेक्टिव दैट इज़ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट्स by using resources efficiently. Safety of resources. Financial management aims at safety of funds by creating resources, reinvestments of profits, etc. And fifth one objective that is meeting financial commitments. The aim of financial management. The aim of financial management the aim of financial management is to meet financial commitments like payment of regular interest on long term borrowings and repayment of loans. ये तो थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आगे हम चलेंगे, दैट इज़ फाइनेंशियल डिसीजंस। The objectives provide a framework within which financial decision making takes place. An efficient financial decision increases the price of shares, whereas a poor financial decision results in decline of share price. Financial management is concerned with three broad decisions, that is investment decision, financial decision, dividend decision. तो पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. They relate to the determination of total amount of assets to be held in the firm. The composition of these assets and the business risk complexion of the firm as perceived by the investors. Investment decisions are of two types: long term investment decision, short term investment decision. Long term investment decisions are referred to as capital budgeting decisions. Capital budgeting is the process of making investment decisions in capital expenditure. These are the expenditures benefits of which are expected to be received over a long period of time, exceeding 1 year. Finance manager has to assess the profitability of various projects before committing the funds.
Investment proposals should be evaluated in terms of expected profitability, cost involved, and the risks associated with the projects. Investment decisions are important not only for setting up of new units but also for expansion of present units. Replacement of permanent assets, research and development project cost, and reallocation of funds. Short-term investment decisions are referred to as working capital management. It relates to allocation of funds among cash and equivalents, receivables, and inventories. Such a decision is influenced by trade off between liquidity and profitability. A sound working capital management policy is one which ensures high profitability, proper liquidity, and good structural health of the organization. तो ये तो था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फाइनेंशियल डिसीजंस का एक इम्पॉर्टेंट यानी कि डायरेक्शन है. तो जो हमारा आज का जो टॉपिक था, जो हम डिस्कस कर रहे थे, दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको हम थोड़ा रिपीट करेंगे. इसमें पहले आ जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. फाइनेंशियल मैनेजमेंट is all about procuring funds at reasonable cost and maximizing wealth of the owners of the company. यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है कि ये सिर्फ इसके बारे में है कि हम फंड्स किस तरह से हासिल करेंगे एक रीज़नेबल कॉस्ट पे, ताकि हमारा जो वेल्थ है उसको हम मैक्सिमाइज़ करें, और हमारे ओनर्स जो हैं उनकी जो वेल्थ है उसको हम मैक्सिमाइज़ करें. जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, दैट इज़ द शेयर होल्डर्स. तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस. यानी कि जो हम फाइनेंस प्रोक्योर करते हैं तो उसको ऐसे इस्तेमाल करना है ताकि उसको उसकी जो यूटिलाइजेशन हो वो ऑप्टिमम हो, वो मुनासिब हो, उसमें वेस्टेज ना हो. थर्ड वन ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट. यानी कि इसका गोल होता है कि कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, एंड मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट्स, और फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए. बाय यूजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली. कैसे? जब हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली उनका इस्तेमाल करेंगे. फोर्थ वन पॉइंट, दैट इज़ सेफ्टी ऑफ रिसोर्सेज. अब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये गोल होता है कि इनको हम सेव करें, इनको हम यानी कि सेफ्टी इनकी हम करें, इनको हम सिक्योर करें बाय क्रिएटिंग रिसोर्सेज, री इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स एट्सेट्रा. यानी कि नए रिसोर्स को क्रिएट करना, री इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिट्स की. तो लास्ट वन ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट्स. The aim of financial management is to meet financial commitments like payment of regular interest. यानी कि जो हमें commitments जो हमारी हैं उनको पूरा करना, that is liabilities, तो उनको पूरा करना, जैसे इंटरेस्ट है on long term borrowings and repayment of loans etc. Thanks.